Good afternoon, everyone. We, Ayush Sharma and Avtansh Dubey, first year BGMC student, Delhi Metropolitan Education, welcome you all to the 30th episode of Vibrant India series. I also welcome all our viewers who are watching us live on Facebook. Vibrant India series, VIS, is an initiative of DME Media School for celebrating 75th year of India's independence. The series will be a year-longer exercise. As part of this series, we invite inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our student. The, the invited personalities for the series are from all walks of life and from all parts of the country. And today our special guest is Padma Shri Jitendra Singh Shanti. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offered BBA, BA BBA LLB, and BAGMC programs. DMA believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them to in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institute in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and student through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school including PG Verghese Lecture Series, Peer-to-Peer FTP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, and Ritika Convention of Media Student and newly added in the list, VIS Vibrant India Series. It is our privilege to introduce to you our guest, the personality of the 38th episode of the Vibrant India Series. Over to you, Avtansh. Thank you so much, Ayush. Padma Shri awardee Shri Jitendra Singh Shanti has been working exceptionally for humanity and has been carrying on with his philanthropic activity over 2 decades now. Jitendra Singh Shanti is a prominent social activist in Delhi. He is very well known for working during the tough times of Corona pandemic and working in relief and rescue of the same by providing much needed services such as free hearse van services for the COVID-19 disease patients, free ambulance services for the COVID-19 suspects and patients, and free cremation services for the patients deceased of corona disease. Till date, he has carried and cremated above 4,500 plus COVID-19 dead bodies, ferried 4,100 plus COVID positive patients. He is a true corona warrior and survivor and got infected with corona 2 times with the entire family down with the deadly virus, including his wife and 2 sons while doing the seva, hence putting his life in danger for the sake of humanity and nation. He is founder of world-renowned NGO Shahid Bhagat Singh Seva Dal. He is a world record holder in blood donation as the first Sikh in the world to have donated blood for 100 plus 3 times voluntarily. I now request the technical team to show some glimpses from his life. Welcome everybody in episode 38. We launched this digital program on August 9 in 2021 on the anniversary of Quit India movement. This is an initiative of DME Media School, Delhi Metropolitan Education. Vibrant India series is an online series to get inspiration from illustrious personalities. This program has been conceptualized and created by Professor Ambarish Saxena. Vibrant India series is a tribute to all those people who have made supreme sacrifices for the independence of our motherland. India will be completing 75 years of independence this year. We started celebration last year only. This program, VIS, has been launched as a part of these celebrations.
8 personalities from the Defense Force have participated in VIS till date. These personalities belong to Indian Army, Air Force, and BSF. These include Lieutenant General Sanjay Kulkarni, Lieutenant General Vinod Bhatia, Dr. P.K. Saxena, Professor R.K. Dargan, Captain Dharmveer Singh, Group Captain Ashok K. Chodia, Mr. Virendra Kumar Gaur from BSF, and Squadron Leader Prerna Chaturvedi. From the field of education and science, 5 personalities from the education sector comprising education planning, teaching and research have participated in VIS. Teaching and research have participated Professor Ujjwal K. Chaudhary, a global educational visionary, Dr. Nakul Parashar, a veteran promoter of science, Dr. Saurabh Ghosh, an international science researcher, Dr. Dev Aikut, a media educator in the US, and Dr. Gurmeet Singh, a promoter of Hindi in countries like Uzbekistan and Italy. From the field of media and journalism, 2 senior journalists, Mr. Rajesh Badal and Mr. Shambhunath Shukla, have graced this program, while Mr. Sanjay Banerjee belonged to broadcasting industry as commentator. Dr. Ashish Kulkarni represent entertainment and animation industry. From NGO and social service, 6 personalities from the social sector, and notably all women have participated in VIS. These include Dr. Monisha Behel, who is working in the Northeast, Dr. Mridula Tandon, a medical doctor working with children, Dr. Mridula Seth, an educationist working on mental health, Mr. Trapti S. Shingal, an entrepreneur and success coach, Ms. Vibhala Khera, a social activist, and Bhavleen Kandari, an environment activist. 3 personalities belong to all art, theatre, and literature. These include Dr. Satchidanand Joshi from Indira Gandhi National Center of Arts, Mr. Arvind Kaur from Asmita Theatre Group, and Mr. Lakshmi Shankar Bajpayee, an eminent poet and broadcaster. From the field of law and human rights, 2 personalities from the field of law and human rights have graced the VIS. These include Professor Manoj Kumar Sinha, Director, the Indian Law Institute, and Ms. Jyotika Kalra, women rights activist and member of NHRC. 10 women have participated in 35 episodes of VIS. I have already mentioned these, 1 in Air Force and 1 in human right. I also want to make a mention of Miss Indrani Singh, a pilot, and Ms. Palvi Fauzdar, an adventure motorcyclist. From the other fields, Mr. S.P. Rawal, author, Mr. Augustine Ballet, communication specialist from UNICEF, Sufi Sayyid Nizamuddin, custodian of Sufi Dargah Nizamuddin Aulia, Mr. Ashok Pradhan, IAS, retired and director, Bharati Vidya Bhavan, Delikin, and Baldendu Sharma Dadiji, director, local languages and accessibility in Microsoft, have also participated in VIS. Today, in episode 38, we have with us an inspiring personality, Padma Shri Jitendra Singh Shanti. He is founder of Bhagat Singh Senadal, and we can never forget his service to humanity during the Corona period. Welcome Shanti ji in Vibrant India series, and welcome you all. Thank you, ma'am. I now request Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School and originator of VIS, to address the gathering and take the program forward. Thank you. So this is a matter of pride and privilege that today we have Mr. Jitendra Singh Shanti with us, who is a household name
nowadays. The kind of work that he has done, even before Corona, he was active so much, but particularly during the Corona period, everybody came to know the kind of services that Shanti ji has been doing. And in fact, in recognition of his services, the government of India has bestowed the honor on him, that is the Padma Shri Award. Because service is such thing which I mean cannot be I mean any deed cannot be better than that. We all work for ourselves, for our growth, for our career, but then we rarely think that we should also do something for others, and that too if you are doing this in a time which is really challenging. So Shanti ji was at the service of the humanity when it was desired the most. And during the Corona period, we all know what all happened during these 2 years, 2020 and 2021. And particularly, if we can refer to the second wave of this COVID-19 in April, May, and June in 2021, there were so much problems all across the country. And despite everything done at different levels, whether we say the central government or the state government or so many other organizations, but then still whatever was being done, that was appearing much less as compared to the kind of problems, the kind of needs were there, whether it's a question of getting the hospital beds or whether it's a question of getting the oxygen cylinder or the medicines. And unfortunately, if somebody would have died, then the cremation was again a serious challenge. But Shanti ji made this easy with the kind of spirit, with the kind of vigor with which he decided to work, he and his whole team. And this Bhagat Singh Seva Dal with which he is steering. So that's really some such thing which nobody will ever forget. And we all owe to him, the whole society owe to him for the kind of work that he has done. So Shanti ji, we welcome you all, welcome you in this program. And if I can tell you something about this particular program, Vibrant India series, though it has been told to you, this is a program which we started to invite inspirational personalities to talk to our students. Because अगर हम देखें किसी भी educational institution में जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासतौर से सिंस ऑल दीज स्टूडेंट जो अभी इस सेशन में दे आर स्टडिंग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सो एट दिस लेवल व्हेन दे आर स्टडिंग, उनको जरूरत है इस तरह के लोगों से मिलने की, इस तरह की प्रेरणा की, इस तरह की इंस्पिरेशन की, जैसे कि उनको भी ये, उनके मन में भी ये भावना आए कि वो भी समाज के लिए कुछ बड़ा करें। तो हम सारे लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं, दूसरे के काम को देखकर प्रेरित होते हैं। तो आपने जिस तरह का काम किया वो सचमुच सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और जो हमने वाइब्रेंट इंडिया सीरीज का पूरा जो फॉर्मेट रखा है, इसीलिए वी रिक्वेस्ट द गेस्ट टू नरेट हिज ओन स्टोरी, हाउ he or she did it. So in the first segment, I will request you to narrate your whole journey कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये ख्याल आया कि आप समाज की इस तरह से सेवा करें कि अपनी जान को भी आप रिस्क में डाल के लोगों की सेवा करें। तो हम आप ही से सुनना चाहेंगे इस पूरी जर्नी को। उसके बाद आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टू इलेबोरेट सर्टेन थिंग्स टू आवर बेनिफिट। And then finally, there are students who wish to talk to you, to interact to you, and then ask certain questions, so that that segment will happen. So to begin with, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी पूरी जर्नी, किस तरह से आपने ये भगत सिंह सेवा दल बनाया, किस तरह से समाज की सेवा करने की आपने जिम्मेदारी ली, और किस तरह से आप आगे बढ़े, क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आए, उन चुनौतियों से आपने कैसे निपटा और कैसे आप लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शंटी जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आप अपनी बात से अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार,
मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुला के आपने बहुत सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके मैं आपके सभी सुनने वालों को, खास करके स्टूडेंट्स जो है, यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार छोटा सा एक झटका इंसान के जीवन को बदल देता है। मैं अक्सर कहता हूँ, गुनगुनाता हूँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और सच यही है जी, सच ये है कि हम अपने लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन जो सुकून किसी और की सेवा करके मिलता है, उसका मुकाबला हम किसी भी सुख के साथ नहीं कर सकते। गुरबानी में लिखा है, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना आवे। यानी पशु जब मरता है तो किसी की हड्डियां, किसी की खाल, किसी के नाखून, किसी की आंख, किसी के सींग काम में आ जाते हैं, लेकिन एक हम इंसान हैं, या जला दिए जाते हैं या दफना दिए जाते हैं। एक छोटा सा झटका जो मेरे भी जीवन में 1995 में आया कि मैं एक शमशान घाट में जब संस्कार करने गया किसी का रूटीन में, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े बच गए जो हैं डेड बॉडी के आसपास, उनको उठा के इकट्ठा कर रहा है। तो जैसा अक्सर सुना था कि लोग करप्शन भी करते हैं शमशान घाट में, मेरे दिमाग में भी आया, मेरे दोस्तों के दिमाग में भी आया। तो हमने पूछा भी आप चोरी क्यों कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं बाहर से अपने बच्चे का इलाज कराने दिल्ली में आया था, उसकी डेथ हो गई है। आज इतने पैसे नहीं है कि मैं संस्कार कर सकूं। 7-8 घंटे से बैठा हूं, रात होने वाली है, सर्दी का टाइम है, कोई चारा ना देख के मैंने किसी से पूछा, तो उसने मुझे आइडिया दिया कि जो लकड़ियां बची पड़ी हैं साइडों पे, आप ये उठा लो, सारी छोटे छोटे पीस होते हैं। और उस व्यक्ति ने उस काम को करना शुरू कर दिया। हमने उसको देखा, रोका, फिर उसकी परिस्थिति को देखते हुए हमने उसका दाह संस्कार करवाया। दिल्ली में बहुत आत्मग्लानि हुई, यार हम राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं, 1 करोड़ की तो कार में चलते हैं लोग। यहाँ अपने बच्चे के जन्मदिन पे, शादी पे, मैरिज एनिवर्सरी पे हम करोड़ों रुपए लगाते हैं, 5 स्टार में करते हैं। करोड़ से कम फ्लैट में कोई नहीं रह रहा। उस राजधानी के अंदर एक आदमी अपने बच्चों के दाह संस्कार के लिए लकड़ी चोरी कर रहा है, लकड़ी के पैसे नहीं है उसके पास। ये बहुत बड़ा इश्यू था। हम दोस्तों ने रात को बैठ के उसके ऊपर मीटिंग की। मेरे कई दोस्तों ने कहा कि यार ये तो प्रशासन देखेगा, सरकार देखेगी। मैंने कहा क्यों प्रशासन देखेगा भाई? हमारे घर में सारी चीजें प्रशासन थोड़ा देखता है। लाइट नहीं आती, हम इन्वर्टर का इंतजाम करते हैं ना। पानी साफ नहीं आता, हम आरओ लगा लेते हैं। सिक्योरिटी के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। तो हम सरकार से तो नहीं मांग देते वो चीजें। तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? हम सरकार पे क्यों छोड़ें, हम शुरू करते हैं। एक शमशान घाट मैंने अडॉप्ट कर लिया, 2 कर लिए, करते करते 17 किए, और बोर्ड लगा दिए कि कोई भी गरीब है, असहाय है, लावारिस है, पुलिस के पास कोई डेड बॉडी है, हम कराएंगे क्रीमेट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया कि ये तो यार लाशों का धंधा कर रहे हैं, किसी ने कहा कफन बेचते हैं, डिफरेंट। तो मैंने सोच लिया था कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कान बंद रखने, आंखें खुली रखनी और काम करते रहना है। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे माता जी ने 3 बातें मुझे कही थी, बेटा अगर तूने शुरू किया है ना सेवा, एक तो ये बंद मत करिए कभी भी जिंदगी में, और दूसरा किसी को मना नहीं करना, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जो आपके पास सेवा के लिए आ जाए सेवा करनी है उसकी। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे सिखाई थी कि बेटा कभी भी अपने दिल के अंदर अहंकार मत लेके आना कि मैंने किया है। वो परमात्मा करा रहा है, उसने तेरे को चुना है इस काम के लिए।
तो भाई तूने सेवा करनी है तो दिल से करना, छोड़ना मत इसको। जब डेड बॉडी का काम करना शुरू किया तो हमें लगा क्रिमेशन के साथ साथ कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल से शमशान लाना हो या घर लाना हो, दिल्ली जैसे शहर में भी हर्ष वैन नहीं मिलती, शव वाहन। तो 96 में हमने शव वाहन बनाया, 1-2 करते करते अब कोरोना आने से पहले तक 12 थे हमारे पास। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस 26-25 साल के सफर में 49,000 डेड बॉडी को हमने घरों से उठा के या कहीं शमशान ले जाके, मतलब अपनी एम्बुलेंसेस शव वाहन से 49,000 शवों को सेवा दे दी है। जो निशुल्क कराए हैं वो 14,000 के करीब है, जो बिल्कुल ही लावारिस थे, गरीब थे, वो डिफरेंट है। यही करते करते बस 3-4 चीज और प्रोजेक्ट दिमाग में आई, जैसे ब्लड डोनेशन बहुत कम कैंप होते थे, हमने शुरू किए, लगातार किए और तकरीबन 150 से जाइए 160 पार कर गए। और मैंने खुद अपने जीवन में 104 बार ब्लड डोनेट किया है। ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, मैं कर पाया उसको। एक कंसेप्ट और लेके आया कि जो घर में डेथ हो जाती है, परिवार वाले बाहर से आने हैं, वो 3 दिन 2 दिन बॉडी को रखना पड़ता है, तो जो नेचुरल डेथ है उसको हॉस्पिटल वाले नहीं रखते हैं मॉर्चरी में। तो हमने मोबाइल मोर्चरी बनाई, फिर वो भी अपने आप में नया कंसेप्ट था। आज भी दिल्ली जैसे शहर में उसी मोबाइल मोर्चरी को कोई किराए पे लेता, 10,000 रुपये किराया, हमने फ्री शुरू की। और मैं अभी देख रहा था 3 दिन पहले ही 27,000 से ज्यादा लोग उस मोर्चरी बॉक्स का फायदा उठा चुके हैं, सेवा का। बस यही करते करते जी दिल में उससे रिलेटेड ही कंसेप्ट आते गए। एक और कंसेप्ट आ गया कि यार बहुत सी ऐसी अस्थियां हैं जिनको को उठाते नहीं है, लवारिस पड़ी हैं शमशान पे, तो क्यों ना उनकी सेवा की जाए। उनको उठाओ, उनको धोवो, उनको पैक करो और हरिद्वार जाके विसर्जन कर दो। ये भी बड़ा लोगों को पसंद आया कंसेप्ट। ये करते करते कोरोना आ गया जी। पहला जब कोविड आया तो मुझे याद है 23 मार्च 2019 में 20 में सॉरी, मुझे तमाम डीएम्स के फोन आने शुरू हो गए कि शंटी जी आपके पास 12 एम्बुलेंस है, क्या आप डेड बॉडी के लिए हमें प्रोवाइड करेंगे, कोविड के लिए पेशेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे। मेरे कई दोस्तों ने मना भी किया कि शंटी जी ये तो मौत का मंजर है यार, ये पंगा मत लेना, आप मना कर देना। मैंने बहुत सोचा और मैंने डीएम साहब को हाँ कर दी। मेरे एक दोस्त थे डीएम संजीव जी, कहने लगे शंटी जी क्या सोच रहे थे। मैंने कहा जी मैं ये सोच रहा था कि 25 साल से शहीद भगत सिंह सेवा दल एज ए मिलिट्री काम कर रहा है और आज मिलिट्री की जरूरत पड़ी है देश में, और उस समय में सेना अगर मैदान में नहीं उतरी तो फिर हमारी मिलिट्री फेल है। 25 साल जीवन के हमने काम किया बिना किसी सरकारी फंड के, ना दिल्ली सरकार ना भारत सरकार, हमने किसी से फंड नहीं लिया आज तक, और आज देश को हमारी जरूरत है। हमने काम शुरू कर दिया, सेवा शुरू कर दी, और पहला जो कोविड आया उसमें 1366 क्रिमेशन हमने किए, और एक ड्राइवर मेरा उसमें शहीद हो गया। मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरी मिसिज, हम सब कोविड में बहुत सीरियस हो गए। मैं डेथ बेड पे चला गया लेकिन फिर वापस आ गया। जब वो पहली बार मैं 14 दिन काट के बाहर निकला, काम फिर भी चलता रहा, मेरी टीम करती रही, एक ड्राइवर भी जाने के बाद भी। मैं बाहर आया तो मुझे मीडिया ने पूछा कि शंटी जी ये कोविड होने के बाद आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। मैंने कहा भाई साहब मैंने एक फौजी की बात सुनी थी जो करगिल की लड़ाई में लड़के आया था और उसकी आंख में गोली लगी थी, एक आंख निकल गई थी। जब उससे मीडिया ने पूछा था तो उसने एक जवाब दिया था बड़ा शानदार कि मैं जब दुश्मन को गोली मारता हूँ ना, एक आंख बंद करके मारता हूँ, अब तो परमानेंट बंद होगी, अब तो टिका टिका के मारूंगा। देखिए जज्बा इसे कहते हैं। मैंने कहा जी मेरे भी ना जो दिल में जज्बा है ना और बढ़ गया है कि यार क्या हो सकता है, कोरोना ही तो हो सकता है ना, मर ही तो सकते हैं। मैं डेथ बेड से भी वापस आ गया, कोरोना भी हो गया, ठीक भी हो गए, भाई अब तो हम कोरोना को चुन चुन के मारेंगे, हम नहीं घर जाने वाले, हम तो टिक के काम करेंगे। दूसरा कोरोना आ गया जी, ये तो कहर था जी।
इस कोरोना ने तो हमें जो दिखाया है, आज भी मैं वो सारी बातें सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रात को भी सो नहीं पाता हूँ। जिस शमशान घाट पे 2 डेड बॉडी की पर डे एवरेज हो और वो रोज 100-125 को क्रॉस करे हैं, और 26 अप्रैल तो मैं भूल नहीं सकता जी। 26 अप्रैल 176 डेड बॉडी एक ही शमशान घाट पे, 176 डेड बॉडी, ये मेरा रिकॉर्ड था। और मेरे आसपास 2 और हैं, हम 3 शमशान घाट ईस्ट दिल्ली में सिर्फ कर रहे थे कोविड की बॉडीज का। 496 डेड बॉडी एक दिन के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको, 26 अप्रैल, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं मैं। देखिए, कोविड से बहुत कुछ सीखा भी है हमने, जहां बहुत कुछ खोया है वहां सीखा भी है। खोया किसे है? अपनों को। खोया किसे है? रिश्तों को। खोया किसे है? दोस्तों को। और हमें सच्चाई पता लग गई। गुरबानी में जो बातें लिखी थी कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से वही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई सगा संबंधी सामने नहीं आया। लाश पड़ी होती थी बाप की, और बेटा कहता था अंकल मुझे डर लगता है। कहीं कहते थे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप ही बॉडी ले जाओ। तो हम कहते थे अंडरटेकिंग पे साइन करो, बॉडी ले जाते हैं। लेकिन जब बॉडी लेके चलने लगते थे तो कहते हैं अंकल दर्शन कर लें। हम कहते थे हाँ कर लो। और दर्शन करते करते कोई पिता की अंगूठी उतार के लेके गया, कोई माँ की बालियां उतार के लेके गया, किसी ने खाली पन्नों पे अंगूठे लगवाए, किसी ने घर की चाबियां निकाली। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास वीडियोज है उनकी, ये सारी जलालत मैंने देखी है। उस समय मुझे लगा यार ये वाकई में इंसान सारा जीवन चोरी चकारी बेईमानी करके बच्चों के लिए करता है, बच्चों ने तो हाथ लगाने से मना कर दिया। फिर हमें करने की क्या जरूरत है इन बच्चों के लिए? कोविड ने हमें हमारी औकात दिखा दी ना जी। करोड़पति भी घर बैठा था, साइकिल वाला भी घर बैठा था। करोड़पति को भी थाली जो है दरवाजे के नीचे से आती थी रोटी की। वक्त फिल्म सबने देखी है बलराज साहनी जी की, उसमें गाना था वक्त की हर शय गुलाम। उसका एक अंतरा था, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला कि हम सड़क पे आ गए, सारे रास्ते बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए, प्रवासी लोग 1000-1000 किलोमीटर पैदल जाने लगे। ऐसा ना जिंदगी में देखा था ना सुना था। लेकिन इस बुरे वक्त में भी अगर किसी ने काम किया तो वो संस्थाएं थी एनजीओ या धार्मिक संस्थाएं, जिन्होंने मानवता का काम किया, अपने कद से ऊपर उठ के किया, संसाधन ना होने के बावजूद किया। आप देखिए हमारे शमशान घाट में जहां 2 डेड बॉडी की एवरेज है, तो हम 1 महीने में 60 हो गई। तो 3 महीने की भी कोई लकड़ी रखेगा तो 180 बॉडी की रखेगा। तो वहां तो 180 बॉडी एक दिन में आनी शुरू हो गई। तो लकड़ी के लाले पड़ गए, घी के लाले पड़ गए, कफन के लाले पड़ गए। मोर्ची बॉक्स नहीं थे, मोर्ची बैग नहीं थे, ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था। ये हालत बन गई। लेकिन शहीद भगत सिंह सेवा दल ने एक आवाज मारी। मैंने फेसबुक पे कहा कि मुझे लकड़ी चाहिए। 3 दिन 500 टन लकड़ी, 3 दिन में 500 टन। मुझे कहा, मैंने कहा एम्बुलेंस चाहिए मुझे। 20 एम्बुलेंस आ गई। अक्षय कुमार जी ने फिल्म इंडस्ट्री से मैं एम्बुलेंस भेजी, 2 एम्बुलेंस ALX। और बहुत से लोग ऐसे बता नहीं सकता। हमारी जो है स्लीप वेल कंपनी थी, उन्होंने भेज दी, महिंद्रा ने भेज दी, गोल्डी वीर जी ने भेज दी। मतलब ऐसे ऐसे नाम मैं बता सकता हूँ कि जिन्होंने खुद चल के आगे कहा कि शंटी जी एक एम्बुलेंस देना चाहते हैं। क्यों? उनको काम दिख रहा था उस समय कि लोग अपनों को हाथ नहीं लगा रहे, ये दूसरों के घरों से लाशें उठा रहे हैं। और जो हम संस्कार कर रहे थे, सिर्फ वो हॉस्पिटल से घर से ऐसे नहीं आ रही थी। 40 से 50 डेड बॉडी हमको लानी पड़ती थी घर से, कि फोन आता था कि शंटी जी यार कहीं फोन उठा ही नहीं रहा, कि कैसे करें। तो मैं कहता था हमारी एम्बुलेंस आ रही है। हम खुद जाते थे, बॉडी को सैनिटाइज करना, पैक करना, लेके आना, उसको जलाना। ईश्वर ने शक्ति दी। रोज की एवरेज इतनी ज्यादा थी, 40 से 50 हम घरों से लानी शुरू हो गए। एक बहुत बड़े चैनल ने मुझे फोन किया, शंटी जी एक लाश पड़ी है द्वारका में, और कोई फोन नहीं उठा रहा। और चौथा दिन है आज,
बहू अपने ससुर की लाश के पास बैठी है, पति उसका कनाडा में है। मैंने कहा जी मुझे नंबर दीजिए, मैंने फोन किया, फिर हम लोग वहां गए, बॉडी को सैनिटाइज किया, 5वें महले से नीचे लाए। जब गाड़ी में रखने लगे तो बहन जी थोड़ा रोने लगे, तो एक माता जी वहां खड़े थे, कहते बेटा अब सब कुछ तो हो गया है, अब क्यों रो रही है? तो उन बहन जी ने जो बात कही ना, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगी माता जी 4 दिन कोई फोन नहीं छोड़ा मैंने जो ना किया हो, तरस तरस के रिक्वेस्ट करते कि 4 दिन मैं लाश के पास बैठी रही भूखी प्यासी। ये आंसू ना, जो आंसू में खुशी के हैं कि जब सारी सरकार फेल हो गई, ये सरदार जी काम आ गए। जब उन्होंने अल्फाज बोले तो मेरे तो भगवान का मैंने शुक्राना किया कि देखो इस बहन जी ने हमारे को कितना मान सम्मान दिया है। लेकिन हमने उस जज्बे को बना के रखा। मैंने अपने सारे ड्राइवर्स को कहा, जब मेरा एक ड्राइवर मर गया, ड्राइवर थोड़े घबरा गए। मैंने कहा बेटा हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसी देश के साथ और एक फौजी को गोली लग जाती है, तो हमें पीछे भागना है या आगे चल के मारना है? कहते जी आगे जाके मारना है। मैंने कहा तैयार हो जाओ, फिर अब घर छोड़ दो। 22 दिन मैं बता दूं आपको अपने जीवन के, 25 अप्रैल से लेके और तकरीबन 18 मई तक मैं शमशान घाट में रहा हूं। घर जाने का मौका नहीं मिलता था, ना खाने का मौका मिलता था। कभी केला खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बस यही करते करते जी, अगर मैं वहां कुछ कर रहा था उसकी शक्ति मुझे लोग दे रहे थे। इतने फोन आते थे, इतने फोन आते थे, दिल्ली से, पंजाब से, अमेरिका से, लंदन से, और यहां तक कि मुझे उपराष्ट्रपति जी ने फोन किया, वेंकैया नायडू जी ने। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया कि शंटी जी आप जो कर रहे हैं हम आज टीवी पे देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, आप डट के सेवा करिए। मैं बता नहीं सकता, मेरा खून बढ़ गया, मेरा हौसला बढ़ गया, जज्बा बढ़ गया एक फोन से। अक्षय कुमार जी का फोन आया, शंटी जी को मदद बताइए हमारे को, मतलब धर्मेंद्र जी का फोन आया, फिल्म इंडस्ट्री की बता रहा हूं मैं आपको बात। बहुत लोगों ने, मनोज कुमार जी का फोन आया फिल्म इंडस्ट्री से, बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे कहा। और वो सेवा करते करते परमात्मा ने इतना हमें सुदृढ़ कर दिया कि जब मुझे फोन आता था किसी दोस्त का कि शंटी जी आप शमशान में खड़े हैं यार, मौत से डरो, क्या कर रहे हो, तो मैं एक जवाब देता था। मैंने कहा देखो भाई हम फौजी हैं, फौजी युद्ध के टाइम में घर में मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा, मरना है तो यही मरना है हमको, शमशान घाट में मरना है। और हमारी गुरबानी में लिखा है, मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, और हर का द्वार तो फिर शमशान घाट ही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था ना कि देश शिवा बरमोहे है शुभ कर्मन ते कबहो न टरो, ना डरो मरस्यो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मैंने कहा हम जीत के जाएंगे, अब कोरोना को हरा के जाएंगे, अब नहीं जाने वाले हम। लेकिन उस कोरोना के बीच में जहां मेरे ड्राइवर्स ने काम किया, मेरे दोनों बेटे जोतजीत और मनीष पाल, इन्होंने बहुत सेवा की। मेरी मिसेज ने उनको जाने दिया है, बहुत बड़ी बात है। और मैं हैरान रह गया उस दिन, रात को सोया हुआ था, 25 जनवरी का दिन था, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का फोन आया मुझे कि शंटी जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं सो गया हूं। कहने लगे आप सो रहे हैं, आप टीवी लगाइए, देश का राष्ट्रपति जी ने आपका नाम स्पेशल कोटे में पद्मश्री अनाउंस कर दिया है। मैंने परमात्मा का शुक्र किया, मैंने कहा देखो ईश्वर ने कृपा करी। लेकिन मैंने ये भी कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये इनाम शंटी का नहीं है, ये मेरे वॉरियर, मेरे ड्राइवर, मेरे बच्चे जिन्होंने मेहनत की है उनका इनाम है। और मैं इसको इनाम नहीं समझता, मैं इनको जिम्मेदारी समझता हूँ कि जिम्मेदारी कि देश के लिए और काम करना है, मानवता के लिए काम करना है। लेकिन मैं आपके सभी सुनने वाले बहनों भाइयों को एक बताना चाहता हूं कि जहां अच्छे काम कर रही थी संस्थाएं इस देश के लिए, मानवता के लिए, एक तबका ऐसा भी तैयार हो गया उस समय में जिसने नचोटा लोगों को, खसोटा लोगों को, और वो तबका गरीब नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कभी देश पे विपदा आई है, पिछला इतिहास उठा लीजिए, कोई लड़ाई लगी हो, करगिल लगा हो, कुछ भी हो, तो कुछ लोग अपने घरों को भरना शुरू कर देते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस और नर्सेस को जिन्होंने दिलो जान से काम किया। लेकिन जो हॉस्पिटल वालों ने मजे लिए इस शमशान में, इस कोविड के भयानक समय में शमशान से बॉडियां भर भर की जा रही थी,
लेकिन अस्पताल वालों ने 25-25 लाख रुपए का बिल बना दिया। एक 300 रुपए की पीपी किट 8-8 हजार रुपए की लगा दी, और जिस बीमारी का इलाज नहीं है उसका 25 लाख रुपए बिल। लोगों के घर बिक गए जी, लोगों के गहने बिक गए जी, लेकिन शर्म नहीं आई उनको। बहुत मोटे मोटे बिल बनाए। लैब वाले 400 रुपए वाला टेस्ट 10,000 रुपए का टेस्ट, शर्म नहीं आई उनको। 500 रुपए का ऑक्सीजन 50,000 का, 2,000 का इंजेक्शन 2 लाख रुपए का, ये दिल्ली में बिका है, आपको भी पता है सबको। एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि यहाँ पानी फ्री है, बत्ती फ्री है, अरे आप सांस फ्री दीजिए ना, सांस। शर्म नहीं आई हमको जब हमारे हॉस्पिटलों के बाहर बैनर लग गए, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। सबको पता है एक ही हॉस्पिटल में, आप देख लीजिए वेस्ट दिल्ली में क्या हुआ था, कितने लोग एकदम मर गए थे। तो ये बड़े ध्यान से समझिए इस बात को कि जहां अच्छे काम हो रहे थे वहां ये तबका भी तैयार बैठा था जिन्होंने ऑक्सीजन ब्लैक करी, मास्क ब्लैक किए, सैनिटाइजर ब्लैक किए, पीपी किट ब्लैक की, मोर्ची बैग ब्लैक किए, इंजेक्शन ब्लैक किए, एम्बुलेंस ब्लैक करी। मैं एक हादसा नहीं भूलता हूं कि एक बहन जी डीआरडीओ हॉस्पिटल जो था मिलिट्री का, वहां से सीमापुरी तक लाए, 30 किलोमीटर है, एम्बुलेंस वाले ने 40,000 रुपए लिया। शर्म नहीं आई उसको। तो मेरा ये सरकार को निवेदन है, मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, कि हमारे देश में दीपावली पे मिठाई के साथ कोई डब्बा तोलता है तो जेल होती है। इस भयानक त्रासदी में गरीब से गरीब आदमी भी अपने पड़ोसी की मदद कर रहा था, जो हमारा कल्चर है, किसी ने धर्म नहीं देखा। और वहीं इन लोगों ने जलालत दिखाई, तो क्यों ना इन सभी बड़े हॉस्पिटल्स का ऑडिट कराया जाए। पिछले सालों का भी खाता निकाल लीजिए, आपका निकाल लीजिए। ये इन्होंने 10-10 हजार करोड़ रुपए कमाए हैं, जो निकालिए इनको, और उसको देश के जो हमारा एक फंड होता है सहायता का, उसमें डाला जाए उसको। और इनके ऊपर क्या होना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी जलालत की है। इनको नहीं बख्शना चाहिए, कभी किसी हालत में नहीं बख्शना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। आप देखना, मेरी बात नोट कर लेना, चंद दिनों में आपको खबर आ जाएगी। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कमेटी बन चुकी है। आपको हरिद्वार का हादसा याद होगा, कुंभ के मेले में कैसे हुआ, 5 लाख टेस्ट दिखा दिए गए और उसमें से 4,74,000 जाली थे सारे टेस्ट। खरबों रुपए का घोटाला हुआ, बड़ी बड़ी लैब कंपनियां थी, बड़ी बड़ी, सब पे एफआईआर हो गया। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो जनता सुन रही है, जहां तक मेरा मैसेज जा रहा है, उनकी निगाह में भी अगर कोई हॉस्पिटल है, लैब है, एम्बुलेंस वाला है, कोई भी है चाहे वो, जिसने ब्लैक करी है इस कोविड के टाइम में इमरजेंसी आइटम्स की, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हम अपना काम अपने दिल से कर रहे थे, हमने किया, हमें परमात्मा ने उसका सिला भी दिया। लेकिन मैं आपके सभी सुनने वालों को यही कहूंगा कि आप भी अपनी तैयारी खुद करिए, प्रशासन पे डिपेंडेंट मत होइए कि प्रशासन करेगा तो करेंगे। छोटा सा व्यक्ति भी बड़ा काम कर सकता है, और जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप गरीब से गरीब व्यक्ति भी हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं, अगर आप ठान लेते हैं ना तो काम होता है जी। मैं एक पटरी से शुरू हुआ था, मैं पटरी से लिटरली कह रहा हूँ। बचपन में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई धंधा कर सकूं, और आज मैं पद्मश्री लेके हूँ, और आज मेरे पास 32 एम्बुलेंसेज हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा हूँ मैं, एक देशों विदेशों से मुझे बुलाया जाता है। लेकिन मुझे एक सुकून है कि मैंने जो सोचा था दिल में, वो परमात्मा ने मेरा साथ दिया, मैंने किया, मेरे बच्चों ने साथ दिया, मेरे परिवार ने साथ दिया, मेरे दोस्तों ने साथ दिया, मुझे सारा नेटवर्क ही ऐसा मिल गया। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आपकी टीम भी समाज के लिए कुछ करना चाहे, मेरे को आप कहीं भी अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, मैं सबको बोलता हूँ, कहीं भी किसी का व्यापारिक संस्थान भी है, मैं जाने को तैयार हूँ मोटिवेट करने के लिए। अभी मुझे उत्तराखंड के गवर्नर साहब ने बुलाया था, सीएम साहब ने बुलाया था कि आप यहाँ भी सेवा शुरू कीजिए शमशान की। हम लगे हुए हैं, उत्तराखंड में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मुझे अभी मुंबई से आगे कल्याण है, बिरला यूनिवर्सिटी, उन्होंने बुलाया था, उनके बच्चों को मोटिवेट करके आए हुए हैं। मुझे अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में बुलाया था, शहीद भगत सिंह कॉलेज में बुलाया था, खालसा कॉलेज में बुलाया था। मैं मोटिवेट करता हूँ बेटा के। तो मैं आपके भी सुनने वालों को निवेदन करूंगा, आप भी शंटी बन सकते हैं, आप भी देश के सेवक बन सकते हैं, आप भी पद्मश्री हो सकते हैं। मैं पद्मश्री के लिए काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं आप जुड़े। और अब मैं किसी को भी अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करना है किसी भी प्रकार का, तो मैं उनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
और जी। अंत में यही कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद। शंटी जी, आप में को तो केवल सुन के ही लोग मोटिवेट हो जाएंगे। आपने मतलब न सिर्फ आपका मतलब आपने काम इतना किया है कि सिर्फ वो काम ही आपका किसी भी आदमी को मोटिवेट करने के लिए काफी है। और जो सामान्य बात नहीं है, आपने जिस तरह की सेवा की, हम लोगों ने ऑलरेडी इतना पढ़ा है आपके बारे में, और आज सभी को सौभाग्य मिला आपको सुनने का। एक सवाल जो मेरे मन में है, जो फंड्स का आपने भी उठाया, कि आपने जिस पैमाने पे, जिस लेवल पे सेवा की, और आपके पास लोगों ने आपकी सहायता की, फंड्स आए, फिर भी आपको किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी फंड्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, जिससे कि जिस तरह से आप सेवा करना चाहते हैं वैसा कर पाए? देखिए, हमारे देश का एक कल्चर है कि हम लोग धार्मिक कामों में बहुत पैसा लगाते, लंगर लगाना, इस टाइप का हम काम ज्यादा करते, धार्मिक स्थानों पे पत्थर लगाना, अच्छी बात है। लेकिन ये जो चैरिटी वाला काम है ना जी, ये सरकारें नहीं करती है, किसी भी कंट्री में नहीं करती है। बता दो, मैं अमेरिका में, लंदन में मैंने देखा से, वहां भी एनजीओ करती है। और वो अगर हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि सरकार उसके लिए मैं फंड दे, मैं उसको भी गलत समझता हूँ। क्यों सरकार फंड दे, क्यों मांगे हम उससे? हम क्यों नहीं एकत्र कर सकते जी? हम एक शुरुआत तो करके देखें। कहते हैं ना कि एक पत्थर तो उछालो यारो, चांद में भी हो सकता है सुराग। हमने शुरुआत करो ना। जो भी आपके साथी ये काम करना चाहते हैं, अपनी लगन से करें, सोच के चलें कि पहले घर फूकना पड़ेगा। पहले घर, मैंने पहली एम्बुलेंस बनाई जब 95 में, अपने पास 800 कार थी, उसको बेच के 22,000 रुपये और इकट्ठे करके डाल के पुरानी एम्बुलेंस बनाई थी, टूटी फूटी। आज मेरे पास फोन आते हैं, मना करे तो मैंने कहा नहीं, मुझे एम्बुलेंस नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, ड्राइवर, बहुत खर्चे हैं, पार्किंग का। मैं, आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी में मैं, मेरे पास अपनी पार्किंग नहीं आई तक। मैंने किराए पे एक प्लॉट डीडीए से लिया हुआ है, उसका लाखों रुपया किराया दे चुका हूँ, लाखों रुपया किराया। बहुत कह लिया कि हमें प्लॉट अलॉट कर दीजिए, मेरे कुछ लोग पैसे भी दे देंगे। मुझे डीडीए ने एक प्लॉट नहीं दिया आज तक, किराया देता हूँ जी मैं उसका। तो जब हम अच्छे काम करते हैं, परेशानी तो आती है ना, कोई बात नहीं, आप करते चले जाओ। थैंक यू। नहीं, लेकिन आपने, शंटी जी, आपने तो अपनी भावना से किया, लेकिन लोगों के सहयोग के साथ साथ सरकार का भी सहयोग जरूरी है कहीं ना कहीं आप काम करने के लिए। मुझे लगता है कि सरकार अभी टांग खिंचाई ना करे, यही बहुत है बस। आपको करने देना, यही बहुत बड़ी बात है। जी जी ये जी। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि करने गया था, सेवा बैठा दिया, जेल में उठाया किसी को। मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है। तो इसलिए अपने दिल से हम काम करें, और जब आप नीचे बन के चलेंगे, नीचे बन के काम करेंगे, कहते हैं ना, नीची जगह पर ही पानी आता है ठहर के, तो लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे काम कराने। और लोग अपने आप एक चैनल बना के रखिए, दिल से साफ रहिए। वहां एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप चैरिटी करेंगे, आपके ऊपर लांछन बहुत लगे, लगने दो ना। लांछन तो कबीर जी भी लगे थे, लगने दो, आप काम करो। अच्छा शंटी जी, अभी जितना आपने काम किया, अब आगे आप अपने काम को किस तरह से विस्तार देना चाहते हैं? आगे की योजनाएं क्या है? मतलब जिन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, या कुछ नए आइडियाज पे काम करेंगे, या ज्योग्राफिकली जैसे दिल्ली में आप काम करते हैं और शहरों में भी एक्सपेंशन करेंगे, क्या किस तरह की भविष्य की योजनाएं हैं आपकी? अब मैंने अलग अलग सिटी में मोटिवेट करना शुरू किया। अभी मेरा ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी कंपनियां हैं, गौर सन्स, मनोज गौड़ जी से मेरी मीटिंग हुई है, बहुत प्रभावित हुए। मैं वैसे भी पुराने वो हमारे पैटर्न रह चुके हैं, और अब हमने उनको सीनियर अपना चीफ पैटर्न बना दिया है। और उनकी मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जब पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बिल्डर बंद हो गए, काम बंद हो गया, 5,000 लोग इनके पास कारीगर थे, मजदूर, नॉट कारीगर। इन्होंने कहा जी कोई गाँव नहीं जाएगा, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। गाँव क्यों जा रहे हैं? रोटी खाने के लिए, दवाई खाने के लिए, सब फ्री दूंगा। 5,000 लोग पर डे नाश्ता, लंच, डिनर ये कराते थे, मैं खुद देख के आया हूँ। और उसके बाद उनकी बच्चियों को फ्री इन्होंने एजुकेशन दी। इनका एक बहुत बड़ा स्कूल है, गौर साहब का बहुत बड़ा स्कूल है। वो उनकी बच्चियों को उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ करोड़पति का बच्चा पढ़ रहा है। बड़ी मजेदार बात है। तो ऐसे व्यक्ति को मेरे को गुमान हुआ जब मैंने उनको अपना चीफ पैटर्न बनाया। तो उनके साथ मिलकर हम ग्रेटर नोएडा में भी डेड बॉडी की सेवा और एम्बुलेंस की सेवा निःशुल्क शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड मैंने बता ही दिया आपको, जी। दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली हमारा चल रहा है, फरीदाबाद चल रहा है,
अब हम मुंबई में शुरू कर रहे हैं उसको। मुंबई की मेयर ने मुझे पीछे बुलाया था कि मेरे ऑफिस में भी दिल्ली में आए थे मेयर साहब मुंबई के, मैं नहीं जानता था उनको तब। कहने लगे शंटी जी हम आपका नेटवर्क देख के आए हैं, ऐसा काम हम मुंबई में भी शुरू करिए। तो मेरा विजन ये है, एक तो हम ये काम शुरू करें, दूसरा जो मेरा बेटा है छोटा जोजीत लंदन से मास्टर करके आया है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो किसी ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जानकारी लेनी हो, एक्सपीरियंस लेना हो, तो वो मेरा बेटा दिया करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दो बातें मैंने सोची है फ्यूचर की। थैंक यू। यहाँ पे मैं हमारे जो स्टूडेंट हैं इस सेशन में वो काफी सारे आपसे बात करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट जो लोग भी शंटी जी से पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो लोग ऑन कैमरा आए और अपना सवाल पूछें। सर गुड इवनिंग सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि कोविड-19 एक ऐसा दौर था जिसमें हर एक व्यक्ति अफेक्ट हुआ है, हर एक व्यक्ति की लाइफ अफेक्ट हुई है। तो उसमें कहीं न कहीं मतलब हमें पता था कि अगर हम सेवा करेंगे किसी की तो हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, हम अगर किसी की हेल्प करेंगे। सर वो कौन-सा निस्वार्थ मतलब सेवा के लिए जो भाव था, वो जो जज़्बा था, हम उस जज़्बे को कैसे कायम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एक सीख बन जाए और हम उसको मतलब आगे कंटिन्यू रखें? देखिए, एक जो माँ होती है ना, आप महिला हैं तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ आपको। माँ गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। पुरानी कहावत है ना ये। माँ खुद भूखी रह लेगी, बच्चे को पहले खिलाएगी अपने। तो ये जज्बा कैसे आता है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ तो जिम्मेदारी से आता है, किसी को कोई जिम्मेदारी मिल जाती है। दूसरा, वो एक मन को पक्का कर ले। जैसे मैंने मन में पक्का किया कि यार घर में भी तो लोग मर ही रहे हैं ना, मैं भी अगर घर में मर गया और 25 साल से सेवा कर रहा हूं, तो शहीद भगत सिंह सेवा दल कहां स्टैंड करता है? फिर संस्था का नाम शहीद भगत सिंह सेवा दल, जिसने देश के लिए फांसी के फंदे को चूमा, और मैं घर में छुपा बैठा हूं। तो मन को पक्का करके मैं निकला, मेरा बेटा निकला, मेरे स्टाफ निकले, वो बढ़ता चला गया। इसी प्रकार मैं देखता था कि उस भयानक समय में जब कोई अपने बच्चों को बाहर से भेजने के लिए तैयार नहीं था, सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे आ जाते थे। वो भी एक माँ के रूप में काम कर रहे थे। खुद बेचारे कोरोना से भुगत के आगे सेवा कर रहे हैं गलियों के अंदर। हमारी पीपी किट उठा रहे थे, वो हमारे ग्लव्स उठा रहे थे। समझिए बात को आप। पुलिस वालों ने घर से निकल के काम किया ना, तनख्वाह तो उनको घर बैठ के भी मिल जानी थी। दिल्ली में 400 से ज्यादा पुलिस वाले शहीद हुए हैं कोविड में अंदर। तो एक जज्बा तो लाना पड़ता भी है, जिम्मेदारियां भी ला देती हैं कोई ना कोई जब जिम्मेदारी मिलती है। और अगर हम घर में ही सोए रहेंगे और व्हाट्सएप और फेसबुक ही देखते रहेंगे तो जज्बा नहीं उठने वाला है। घर से बाहर निकलेंगे, किसी की परेशानियों को देखेंगे, हमारा काम करने का दिल करेगा, जज्बा बढ़ जाएगा। ये होता है तरीका। थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं, अवतांश दुबे, आपने सवाल पूछे। Thank you so much, sir. Sir, how can we as youngsters also contribute towards social service? देखिए, कंट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है, एक शारीरिक और एक धन से। और ये दोनों की जरूरत है, क्योंकि जो भी संस्था है, चाहे वो धार्मिक है चाहे सामाजिक है, फंड कहां से लाएगा? जैसे मैंने कहा कि सरकार से तो लेना नहीं हम। तो कंट्रीब्यूट सारा मत करिए आप। अगर आपकी सपोज 30,000 रुपये महीने की इनकम है, सोच लीजिए कि 5,000 रुपये, 4,000 रुपये करना, 2,000 रुपये करना। इसी प्रकार शारीरिक, आप सोच लीजिए कि मेरे दिन में मैं 12 घंटे काम करता हूँ, 30 मिनट ना रोज। मुझे एक बच्चे की इसमें स्टोरी याद आ गई। एक बच्ची का मुझे फोन आया कि शंटी जी एक एम्बुलेंस नोएडा भेज सकते हैं? ये मई की बात है, लास्ट। मैंने कहा हाँ बेटा। उसने एड्रेस दिया, मैंने एम्बुलेंस भेज दी। अगले दिन फिर फोन आया, शंटी जी ये कैसे, फलानी जगह एक एम्बुलेंस जानी है। मैंने कहा बेटा आपकी कोई एम्बुलेंस सर्विस है? कहती नहीं अंकल, मैं एमबीए करके घर बैठी थी खाली, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि मैं कोऑर्डिनेट करके जो लोग घरों में फंसे हुए हैं, क्यों ना वो हो सकता है आपके तक सीधा ना पहुंच सके, हो सकता है इतना ज्ञान ना हो ऐप दुनिया भर के, तो मैं उनको ये काम कर रही हूँ कि जिनको नहीं मिल रही है एम्बुलेंस और डेड बॉडी वाली गाड़ी, मैं आप जैसे लोगों की लिस्ट बना लिया मैंने, 10-15 लोगों। मैं वो एक को करेगा, मैं 15 को कर लेती हूँ और 5 मिनट में कर लेती हूँ और मैं उसकी पूर्ति कर देती हूँ। मेरे दिमाग में आइडिया, तारीफ निकली, यार ये बच्ची का दिमाग देखो, घर बैठी है और कोविड वॉरियर बन गई है। बहुत मैं उसके घर गया था उसको बधाई देने एक दिन तक। तो ऐसे ही आप अगर मन इस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। धन्यवाद। आयुष शर्मा, अपना सवाल पूछो।
सर जैसे कि हमारी एक यंग जनरेशन है, तो हम भी ऐसे छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन और छोटी छोटी चीजें करने का ट्राई करते हैं, बट हम कुछ ऐसी चीजें फेस करते हैं जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर लाइक हम कैसे खुद को ऐसे मोटिवेट रख सके, और ऐसी जो नेगेटिविटी आती है कुछ कंट्रीब्यूट करते टाइम या फिर कुछ ऐसा अच्छा करते टाइम, उस नेगेटिविटी और उस क्रिटिसिज्म को हम कैसे डील करें? देखिए, हमारे देश में लोगों ने गुरुओं को भी क्रिटिसाइज किया, लोगों ने वैज्ञानिकों को भी क्रिटिसाइज किया है, लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को भी क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज काम कौन करता है? अच्छा, आप उसके आंसर का जवाब, क्वेश्चन का आंसर, क्रिटिसाइज कौन करता है बताएंगे आप? आयुष आयुष सर सुनाई नहीं दिया मुझे। क्रिटिसाइज कौन करता है? सर क्रिटिसाइज लाइक जो जैसे कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो बस खड़े होके देख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन स्मार्ट है, वो छोटा सा क्वेश्चन है। क्रिटिसाइज कौन करता है? जो कुछ नहीं करता है, ये भी समझ लीजिए बात। जो कुछ नहीं करता है वो सिर्फ क्रिटिसाइज ही करता है, वो फेसबुक पे सारा दिन कमेंट्स ही डालता रहता है। कुछ नहीं करना है भाई, क्रिटिसाइज करने दो ना। आप, एक हाथी जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, हाथी गली में घुस के कुत्ते के पीछे भागता रहेगा तो गली तक ही रह जाएगा ना, सीधा चलता रहेगा। हाथी तो कई शहर पार कर जाएगा। कुत्ते को भौंकने दीजिए, क्रिटिसाइज करने दीजिए, टेंशन नहीं लेने का है, देने का है। थैंक यू। ठीक है आयुष, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। खुशी श्रीवास्तव, अपना सवाल पूछो। Hello, sir. Good afternoon. Sir, my question is कि as we have seen, many people have lost their jobs and जब कोविड बहुत पीक पे था, तो उस वक्त सबसे ज्यादा कौन से ग्रुप को सफर करना पड़ा हमारी सोसाइटी में, एंड अब आगे हमें क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर, और ऑफ कोर्स अभी भी कोविड है, बट अगर पीक पे हो तो फिर उनको ऐसा क्या करना चाहिए, उनको फिर से इतना। इस सफर तो खैर उस समय सबको ही करना पड़ा, लेकिन जिनके घरों में संसाधन बहुत कम थे उनके लिए बहुत बड़ी विपदा खड़ी हो गई थी। नौकरियां चली गई, बच्चे घर बैठे हैं, खाना पीना मिल नहीं रहा, कुछ संसाधन नहीं बन रहा था। जो अमीर लोग थे बहुत, उन्होंने कहीं ना कहीं कैश भी रखा हुआ था लिक्विड, और भी कहीं ना कहीं से दस्ती मांग लेते थे, यार दे दो, बैंक खोलेंगे तो दे देंगे आपको, एटीएम से ले देंगे। लेकिन वो जो परेशानियां थी उसने हमें जीना भी तो सिखाया बाबू, कि हमको कैसे जीना है, कैसे अपने इंतजाम रखने हैं। अब जापान जैसी कंट्री है, हर 15 दिन बाद भूकंप आता है जापान में, तो हर बार वो नया प्लान नहीं बनाते। उन्होंने एक प्लान बना दिया कि मकान लकड़ी के बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा, और हर घर में बेड के पास एक किट रखनी है। उस किट के अंदर क्या है? उस किट के अंदर हथौड़ी है, प्लास है, टॉर्च है, मोबाइल फोन है, उसकी बैटरी है, वगैरह वगैरह, खाने के 2-3-4 पैकेट हैं, पानी की बोतल है। एक प्लान बना दिया उन्होंने। इसी प्रकार अब हमको भी आगे प्लान बना दिया। हम आरओ लगाते हैं ना पानी के, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। अब हर घर में एक कंसेंट्रेटर रखो या ऑक्सीजन का सिलेंडर रख लो। कितने का आता है? 8-10 हजार का। इतने का तो आजकल एलईडी नहीं मिलती। हम अपने संसाधन रखने, इसको क्यों ना रखें हम? तो एक ही तरीका है कि धीरे धीरे अपनी चीजें अपने पास रखें, जो जरूरत में आनी है इस समय, फिर उस समय ब्लैक में नहीं लेनी है। क्योंकि कोरोना अभी 4-5 साल चलना है और जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन क्यों कम हुआ, ये इसका असर ये बता देता हूँ मैं आपको। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है, समय पर हुई है। और शुरू में लोग इसलिए ज्यादा मरे थे कि उस समय हम वैक्सीनेटेड नहीं थे, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं थी, सहन शक्ति नहीं थी। आज परमात्मा की कृपा से शक्ति भी आ गई है, डर भी कम हो गया है, वैक्सीनेट भी हो गए हैं, इसलिए अब खतरा नहीं है। आपको अपनी तैयारी खुद करनी है, सरकार पे भरोसा नहीं कर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने शंटी जी ये कही कि निश्चित रूप से कि हम सरकार के ऊपर बैठे रहे और फिर से इंतजार करें कि फिर कोरोना आएगा फिर क्या करेंगे। तो सर इनको स्लोगन बता दीजिए जो बस में लिखा होता है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। जी है ना जी। तन्वी, अपना सवाल पूछो। हेलो मिस्टर शंटी, वेरी नाइस टू मीट यू। सबसे पहले तो I felt really motivated by looking at your all the social work. काफी अच्छा फील हुआ मतलब आपके समाज सेवा देख के। और मेरा सवाल उस चीज के ऊपर है जो आपने चीज क्रिटिसाइज की थी, दैट किस तरह से जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने
एक तरह से कोविड काल में किस तरह से लोगों को लूटा है, मतलब आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी थी एंड देयर वर आल्सो सम स्कैम्स, सो उसके ऊपर मतलब क्या कहना है कि इस चीज से किस तरह से, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे स्कैम्स काफी सारे सामने आते हैं, तो फिर उसके बारे में मतलब क्या कहना है, किस तरह से इस चीज को टैकल किया जा सकता है, हर आम आदमी किस तरह से टैकल हो सकता है ताकि वो फ्रॉड से बच सके। क्या नाम है आपका? तन्वी त्रिपाठी। आपने जो मुझे क्वेश्चन किया है इसके जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ। आपको मेरा मेरा ऑब्जेक्शन, मेरा ब्लेम ठीक लगा? पहले तो बताओ, हॉस्पिटल्स वाला। बिल्कुल सही लगा सर, बिकॉज काफी सुना था कि ऑक्सीजन की कमी होती है, और मतलब एक तरह से किस तरह से चीजों के दाम बढ़ा के, मतलब जैसे आपने बताया कि पीपीई किट को महंगा महंगा बेचने। 8,000 रुपए की, 300 रुपए की है वैसे, 8,000 की। तो मैं इसके लिए आपसे बेटा ये जवाब देना चाहता हूँ, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आज आपको सब पता है, आपको वेबसाइट क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, सब पता है आपको। सब लेटर तैयार करिए, साइन मारिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजते जाइए, आप भेजते जाइए। आप एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी। हमें अकेला शंटी नहीं बनाएगा मूवमेंट, ये मूवमेंट पब्लिक बनाएगी। कि हमने बहुत बुरा समय देखा है। जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो हॉस्पिटल वाला है, चाहे वो लैब वाला है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी वाला है, इंश्योरेंस वाले बहुत मजा लिए हैं, चाहे वो एम्बुलेंस वाला है, चाहे वो प्राइवेट फिजिशियन है, सर्जन है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे को बहन जी का फोन आया कि मेरे पापा जी घर में अकेले हैं, मैं दूसरे घर में हूँ, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया है। तो मैंने कहा चेक कर लो, आजकल तो लगा देते हैं वो ऑक्सीमीटर। तो कहने लगी मैं 1 किलोमीटर दूर हूँ, उनके घर के साथ में एक बंदा है, मैं उसे कह दूं उससे चेक करा दूं, मैं करा दे। आप बिलीव करेंगे, उसने मुझे जो जवाब दिया, कहती मैंने चेक तो करा दिया है, जो डॉक्टर साहब उनके घर जाके ऑक्सीमीटर चेक करके आए, उनकी ऑक्सीजन जो बड़ी कम है बहुत, उसने 500 रुपए ऑक्सीमीटर लगाने के ले लिए। यार क्या कर रहे हैं यार, तुम लूट खसूट मचा दिया। फ्रॉड्स के बारे में कि मैं किस तरह से 500 रुपए का तो 500 रुपए का ऑक्सीमीटर नहीं है, और 500 रुपए उसने देखने के ले लिए। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे लोगों ने फायदा उठाया। आप लोग हैशटैग बनाइए इसके लिए, आप सब कुछ आपको पता है, ट्विटर क्या है, सब कुछ क्या है, फेसबुक क्या है, डालिए इसको दबा दबा के। आप आज ही मन प्रण कर लीजिए कि मैंने एक वीडियो देखी थी शंटी जी की, शंटी जी ने आवाज उठाई है दिल्ली के अंदर शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से कि जो हॉस्पिटलों ने ऐसे ऐसे करा है, उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए, और वो फैलता जाएगा। आप एक डाल के तो देखिए आप। अच्छा सच्ची बताओ, आप फेसबुक पे हैं? I'm not on Facebook. I'm on Twitter. I'm on Instagram. आप ट्विटर पे हैं? सोचा कि I will make a movement now. आपके ट्विटर में कोई फॉलोअर्स हैं आपके? Yes, I have many. How much? 2,000 around. आप जो उसमें कुछ भी डालते हैं, आपको कितने लोग उसमें कमेंट्स देते हैं? आइडिया कितने लोग लाइक करते हैं? लाइक कमेंट्स का क्या मतलब फॉरवर्ड करते हैं? आप ट्वीट पर्सनल मोमेंट्स में अपने शेयर करती हूँ ट्विटर पे। ध्यान से सुनो, ट्विटर कम यूज कर रही हूँ। आप मेरी बात को नोट करना। आप इस बात को लेके एक बात ट्वीट करके देखिए, प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश में इस समय में लोगों ने किया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आप डाल के देखिए आप, और उसमें मेरा जिक्र कर सकते हैं कि जितेंद्र सिंह शंटी जी ने आवाज उठाई थी कि बहुत अच्छी आवाज लगी हमें, तो लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और जिन सरकारों को फंड मिला उन्होंने अपना फंड नहीं लगाया, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। आप डाल के देखना, आप थक जाओगे ट्विटर में गिनते गिनते किस किसने रीट्वीट किया है, लेकिन कोई आगे लगने वाला चाहिए, पीछे की लाइन बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू। शंटी जी, अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, और आपने सबसे अंत में सबसे अच्छी बात कही, क्योंकि जो बेसिक पर्पस भी है इस प्रोग्राम को करने का, कि सिर्फ मोटिवेशन तक ही हम सीमित ना रह जाएं कि आपने अच्छी बातें बताई, हमने सुनी और हम बहुत मोटिवेट हो गए और किया कुछ नहीं। तो जो मोटिवेशन है वो एक्शन में भी दिखाई देना चाहिए। तो भगत सिंह पैदा हो जी पड़ोसी के घर में शहादत न देनी पड़े जी, तो आप खुद तैयार हो जाइए। जी, एक्शन जरूरी है। जब हम सब लोग मिलके अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और हम सारे लोग काम करेंगे, तभी समाज में कोई बदलाव आ सकता है। तो ये जो मोटिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए आपको इतने सारे लोग मोटिवेशन के लिए बुलाते हैं कि आप वो सूत्र वाक्य दे देते हैं लोगों को, वो मैजिक दे देते हैं कि कैसे रास्ता आगे निकलेगा। तो वो रास्ता तभी निकलेगा जब हम सब लोग इस पूरी सारी चीजों को लेके एक ऐसा मुहिम बनाएंगे कि जो भी
लोगों के हित में जरूरी है वो करना है, और जो नहीं करेगा उसको अकाउंट, दैट पर्सन हैज टू अकाउंट फॉर दैट, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और सिर्फ हम जिम्मेदारी तय करके भी नहीं बच सकते कि उसकी तो जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम सबको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी और तभी समाज का और देश का कोई भला हो सकता है। आपने शंटी जी इतना समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें और इतने अच्छे तरीके से बताई कि हम, क्योंकि मैंने जब से बताया था कि आप आएंगे प्रोग्राम में, हमारे सारे ही स्टूडेंट्स आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में सब आज आए इस सेशन में। और चूंकि फेसबुक लाइव है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे फेसबुक लाइव पे भी तमाम लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और हम सचमुच सारे लोग बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और हम आपके दिल से आभारी हैं कि आपने इतना समय हमें दिया और सबको इतना मोटिवेट किया। अंत में मैं आपको भगत सिंह जी का एक शेर सुना के विदाई लूंगा जी। फांसी से एक दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह जी ने जेल की दीवार पर कोयले से लिखा था, दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन है। जय हिंद। The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects, nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.